आज का वही है यूनिट 6 रिजिड बॉडीज। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें अगर हम फोर्स लगाएं, मॉडरेट फोर्स, जो पार्टिकल्स की बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी होती है, जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स उसकी शेप और साइज सेम रहती है। जैसे अगर मैं ये ग्लास का है, अगर इसमें मैं फोर्स लगा दूं कहीं से भी, इसके जो शेप या साइज चेंज नहीं होगी। इसको हम कहेंगे भाई ये रिजिड बॉडी। लेकिन सम व्हेन फोर्सेस आर मॉडरेट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो ये शेप चेंज करेगी। अगर ये है, इसको अगर फोर्स लगा दो, ये अपनी चेंज या साइज शेप चेंज करती है, तो ये रिजिड नहीं है। ठीक। सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? अ रिजिड बॉडी is that body in which the distance between any two particles remains same when an external force is applied to it. So, a rigid body conserves its size and shape when it is moving or when deforming force is applied to it. ठीक। तो कोई चेंज, सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी, this is particle 1, particle 2, particle 3. If we apply an external force, this distance between these two will never change, or this distance will not change, or this distance will not change. It will remain same when external force is applied. Number 1, if a body gets displaced displaced, then all of its particles suffer same or equal displacement. What does it mean? Suppose we have this body here. This is a point here. Let us say one particle is here and another particle is here. If I move this from this point to this point, now first of all let us so one point is here and another point is here. ठीक। now अब इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अब ये पार्टिकल यहां से यहां चला और ये पार्टिकल
यहां से यहां चला, ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है ये इक्वल होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, सो ईच एंड एवरी पार्ट विल सफर सेम डिस्प्लेसमेंट। इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं ऐसे। ये बॉडी है एक, let us say one particle is here, another particle is here. Now this is gets displaced by applying some force. It's a rigid body. Now it reaches at this point. Now this particle, let us say particle A, this will reach to this point, A dash, and this particle will reach to this point because it conserves the shape from B to B dash. If we measure A and A dash, it will be always equal to B and B dash. So is true for all the particles which constitute the body. Second, if a body is rotated through certain angle, then all the particles suffer same angular displacement. What does that mean? It means that, let's suppose that this is a body, okay? It is moving in this direction, rotating in this direction. Let us take two parts. Let us join them, A, B. Now this is rotated through certain angle. Let us say A reaches to A dash, and this B reaches to B dash. This then angle that is described by B will be same angle described by A and A dash, or all the particles which are there. So the angle will be same. This theta and displacement of A to B angular displacement will be same for B to B dash. Okay, so all the particles will suffer same angular displacement. Now, what are rigid bodies? No body is a perfectly rigid body. Perfectly rigid, कोई भी बॉडी जो दुनिया में है वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। अगर ये मिसाल के तौर पर किसी फोर्स में, मिसाल के तौर पर ये पेन है, मैंने इसको प्रेस किया, इसको कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर मैं ज्यादा लगाऊं तो डिफॉर्म हो जाए। सो जो मॉडरेट कंडीशंस में जिनको कोई खास डिफॉर्मेशन नहीं होती उनको हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्चुअली परफेक्ट नहीं, इवन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फोर्स भी अगर लगाए, देयर विल बी सम change in the shape, or there will be a deformation, though we cannot perceive it through our eyes, but always there will be a deformation in that body. Now in practice, we take say wooden block, metallic things, हाँ, जो भी मेटल से बने हों, things made of glass, etc., are considered to be perfectly elastic under moderate under moderate forces.
यानी अगर मॉडरेट फोर्स के अंडर वो रिजिड ही है, लेकिन जब ज्यादा लगाए तो वो भी डिफॉर्म हो जाए। सो यूनिवर्स में कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। अब किनको हम कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडीज? जैसे वुडन ब्लॉक है, अगर उस पर ऑर्डिनरी फोर्स लगाते हैं, मॉडरेट फोर्स लगाते हैं, वो अपनी शेप या साइज चेंज नहीं करेगा। या ग्लास बॉडी है, या बॉडी इज मेड ऑफ ग्लास और मेटेलिक बॉडीज, ठीक, उनको हम ये रिजिड बॉडीज कंसिडर करते हैं। Center of mass of a rigid body. We have already known that position vector of center of mass RCM is given by M1 M1 R1 plus M2 R2 plus dash 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 plus Mn Rn divided by M1 plus M2 plus dash dash plus Mn. What is this? This is position vector of vector of center of mass of a body, which consists of n particles having mass m1, m2, m3 and mn and so on, and their position vectors are r1, r2 and r. ये हमने निकाला है। This equation can be written in a condensed way, छोटा करके इसको ऐसे लिखते हैं हम, summation upon I transform 1 to n mi ri divided by, we can write this as summation mi. What is this? This is total mass of the body. That is, we write it as, what is sigma mi? Total mass of a body. Now, rigid body as such is not made up of few particles. It is a continuous mass distribution. Rigid body is a continuous mass distribution on macroscopic scale. Macroscopic scale, यानी ये अगर ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है कोई, मिसाल के तौर पर रिजिड बॉडी है, इसमें हम अलग अलग पार्टिकल नहीं दे सकते हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। सो ये अलग अलग हम इसको देख, मैक्रोस्कोपिक, जब हम नीचे लेवल पे जाए तब तो एटम मॉलिक्यूल वगैरह उसके बने होते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो बड़ी लेवल पे लिखते हैं तो ये एक कंटिन्यूस में कोई अलग अलग पीस हमें मॉलिक्यूल या वो इसमें से वो नहीं दिखते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, ओके। सो वी लेट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर हम इसको n इन्फिनिटी टेंड करेंगे, देन समेशन विल अप्रोच टू इंटीग्रेशन। Summation approaches to integration when n tends to infinity. इन्हें बहुत सारे पार्टिकल है, एंड वी राइट इट एज, अब ये जो बॉडी है इसको हम स्मॉल मासेस जो होंगे डीएम 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 छोटे छोटे मास के टुकड़ों में, वो जो कंटिन्यूअस है वो मानेंगे हम इसको, ठीक। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, this equation, let us say this is equation 1, we can write it as RCM equal to, ये क्या बनेगा, क्योंकि n इंफिनिटी है बहुत सारा, वी कैन राइट इट इंटीग्रल। अब मास को m नहीं लिखे, हम लिखेंगे dm, यानी जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे डीएम मास की बनी, छोटा छोटा मास, छोटे छोटे मासों का ये एक मजमुआ है, क्लियर। दिस कैन बी रिटन एज r, ओके, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल dm। यानी ये जो बॉडी है ये बहुत सारे डीएम छोटे छोटे मास जिनका साइज डीएम है उन्हीं की ये बनी है, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर
Now, this thing can be written as integral dm. Now, we know that RCM is a vector quantity. This can be written as in terms of x, y, and z coordinates. XCM, x coordinate of center of mass, that is I, plus capital YCM, J plus ZCM. ठीक. Similarly, the position vector R can be written as XI plus YJ plus ZK. Now, if we substitute in this equation 2, what we will get? We will get RCM equal to इंटीग्रल डीएम तो ऐसे रहेगा, एक ही डीएम तो आर एम आर ये जो आरसीएम है इसके बदले में हम ये लिखेंगे. ठीक. सो एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस जेड सी एम के जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल. यहां हमने दिया, अब इसको देंगे इंटीग्रल. आर के बदले में क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के into dm divided by integral dm. Now, homogeneity principle के हिसाब से I component of right side should be equal to I component of left side. Similarly, J component of right side should be equal to J component of left side, and so on. So, if we compare these, on comparing, we get XCM, that is the x coordinate of the center of mass, will be equal to integral x coordinate this divided by integral dm. Okay. Similarly, YCM will be equal to integral y dm by integral dm, and ZCM integral z dm divided by integral d. This is how we relate the center of x coordinate of center of mass with the x coordinate of the body. Similarly, y coordinate. So we have written center of mass in terms of x, y, and z coordinates. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will turn to another thing. Now we have this, what is called center of mass of some rigid bodies. ये याद रखना है, center of mass of some regular bodies. यानी रेगुलर मतलब मीन्स जो सेम हो, हर एक जगह सेम हो, उनकी थिकनेस वगैरह कहीं डिफरेंट ना हो. ठीक. उनको हम कहते हैं रेगुलर. उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये आपको याद रखना है, किसका कहां पर है. ठीक. पहला है आपका लॉन्ग थिन रॉड. लॉन्ग थिन रॉड ये रेगुलर है. रेगुलर मीन्स यूनिफॉर्म. ठीक है. लॉन्ग थिन रॉड जैसे ये है, ये स्केल है, ये लॉन्ग थिन, इसका कहीं हर एक जगह ये एक ही जैसी है, कहीं मोटाई नहीं. तो वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास? इट विल बी एट इट्स मिड पॉइंट. ठीक. ये थिन रॉड है, लॉन्ग थिन रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सी होता है एट द मिड पॉइंट. लेकिन होनी चाहिए रेगुलर. अगर कहीं ये मोटी बीच में या कहीं पतली हो तो फिर इसके सेंटर में फिर ये रेगुलर नहीं है. ठीक. सेम थ्रू. नंबर 2,
थिन सर्कुलर रिंग, थिन सर्कुलर रिंग, यानी सेम कहीं ये जो रिंग है जैसे बैंगल होता है उसी तरह से, तो ये बीच वाला खाली है, लेकिन ये सेम जो थिकनेस होनी चाहिए सारे जगह सेम, तो उसका भी आएगा कहाँ, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एट इट्स सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, तीसरा तीसरा है आपका सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ठीक, वो भी एक्चुअली इसी तरह से होते, लेकिन उसकी ये स्पेस खाली नहीं होती है, वो भरी हुई होती है। अगर उसकी कहीं जो थिकनेस हर एक जगह सेम हो, तो वो भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। चौथा, रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना यानी एक रेक्टेंगल जिसकी मोटाई हर एक जगह सेम हो, जैसे ये है मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसकी थिकनेस हर एक जगह सेम है, यहां से यहां से, तो इसको कहाँ आएगा, अगर इसके डायगोनल्स जो डालेंगे हम ऐसे, डायगोनल्स डाले हमने, तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा वहां पर, ठीक, सो ये है रेक्टेंगुलर लैमिना, इसका कहाँ होगा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, सेंटर ऑफ मास होगा एट द, याद था इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक, उसके बाद है, क्योंकि ये जरूरत लगते हैं ना आगे, उसके बाद है आपका दिस रेक्टेंगुलर क्यूबिकल बॉक्स, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल बॉक्स, उसको कहाँ होगा, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल बॉक्स ये हो गया आपका, ठीक, इसको भी कहाँ होगा, जो अंदर से डायगोनल होंगे वो बीच में सेंटर में आएगा डायगोनल, जैसे ये रेक्टेंगुलर क्यूबिकल बॉक्स है, इसका कहाँ होगा, यहाँ बाहर वाले डायगोनल्स पे नहीं होगा, याद रखो, जो अंदर वाले ऐसे डायगोनल्स होंगे बीच सेंटर में, तो वो वहां आएंगे, तो वहां जो सेंटर में काटेंगे वहां पर ये इसका ये होगा सेंटर, ठीक, लिखेंगे क्या, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक, उसके बाद है आपका रेक्टेंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, छठा ट्रायंगुलर लैमिना, जैसे ये ट्रायंगल है, लैमिना हो गया, इसमें थिकनेस भी है, ठीक, तो इसका कहाँ आएगा, जैसे दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ना अगर मैं यहाँ मिड पॉइंट निकालूं, इसका सेंटर यहाँ, इसका मिड पॉइंट निकालू यहाँ, और इसका मिड पॉइंट निकालू यहाँ, अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा वर्टेक्स के साथ, ठीक? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक, कहाँ होता है इसका, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of medians of triangle lamina, huh? That is also called centroid. ठीक है, उसके बाद है आपका स्फीयर, वेदर इट इज सॉलिड और हॉलो स्फीयर। जैसे ये यहाँ पर स्फीयर है, ये सॉलिड है, इसका होगा अंदर से जो सेंटर हो, जब इसके अंदर जाएंगे सेंटर आएगा, वहीं पर इसका ये होगा सेंटर ऑफ मास। अगर हॉलो भी होगा तब भी वहां सेंटर। ठीक, तो छठा क्या है, सातवां क्या है, सातवां है स्फीयर, सॉलिड और हॉलो। ठीक, आपको तो अपने पास है रिजल्ट, नहीं भी उसको करना है ना प्रोसेस थोड़ा। अच्छा, तो इसका कहाँ होगा, एट सेंटर। ठीक है, उसके बाद है आपका आठवां स्लैंडर, राइट, जो राइट स्लैंडर, ठीक, ये सीधा। ये इसको कहते हैं एक्सीज ऑफ, ये किसका है, सिलेंडर, हाँ, ये होगा एट द सेंटर ऑफ एक्सीज, लेकिन ये यूनिफॉर्म होना है, जो सिलेंडर की थिकनेस सब भी अंदर से हो, बाहर से नहीं। ये जो जैसे सिलेंड्रिकल इसकी शेप है ना, तो जब मैं इसकी एक्सिस यहां से जाएगी, जैसे पेन की जो ये जाती है ना, ओके, तो अंदर से जाएगी, तो जब अंदर पहुंचेगी तो अंदर के सेंटर में इसका, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर नहीं, एट मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। नौवां और लास्ट, दैट इज कोन, ओके, ये है राइट सर्कुलर कोन, ओके, यानी ये जो एंगल बना था 90 से टेढ़ा नहीं है, ठीक है, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन। अगर इसकी हाइट h है, ठीक, फ्रॉम द बेस, दिस इज बेस, ओके, फ्रॉम बेस टू एपेक्स p, अगर इसकी हाइट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जब यहां से हम फ्रॉम बेस यहां पहुंचेंगे, वो हाइट कितनी होगी, h/4, h/, इसकी हाइट है h, जब हम नीचे से h/4 आएंगे, जो वो पॉइंट होगा वहां उसका सेंटर ऑफ मास, दैट इज एट h/4 the height of cone from base, यहां से, अगर यहां से भी h/4, लेकिन एपेक्स से नहीं आना है, बेस से आना है, ठीक। सो दीज वर 9 फिगर्स जिनका ये